ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। नहीं जी मैं नहीं, वो दसूगा मुंडा पढ़ा लिखा। इनेलो वालों ने खुद वोट दिया रणजीत सिंह को, तब बात और थी क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार थे। तो इस टाइम अगर ये खुद या इनके परिवार से कोई या इनका बेटा आएगा तो भाई बदल जाएंगे समीकरण। विकास होया कि विकास है? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। चौधरी साहब चौधरी साहब ही सन, रणजीत भी ठीक थी पर सानू मुंह ही नहीं दिखाया। हमारी हरियाणा विधानसभा चुनाव की यात्रा निरंतर जारी है और फिर से आपका स्वागत है चुनाव यात्रा के इस वीडियो में। अभी मैं रानिया विधानसभा के गांव बडोला वाली में हूं और मेरे पीछे यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी है, किसान हैं। बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य इनके यहाँ हुआ है और क्या क्या विकास कार्यों की अभी भी मांग है और आने वाले चुनाव में वो क्या चाहते हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नहीं यार, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया मोदी ने काम किया। काम कितना है? बहुत बढ़िया मोदी ने काम किया। हाँ चौधरी साहब ने चौधरी साहब ने रणजीत ने ठीक है, भी काम ठीक है। तभी बिजली महकमे का काम बढ़िया। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ? हाँ बहुत होया काम। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕੀ ਪਾ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ? ਟੀਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਫੈਨ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। बीजेपी सरकार तो खुश हो कि नहीं हो? ਬਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਹੈ। ਐ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਖ 'ਚ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ। चौधरी साहब ने ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਬਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਆने वाले हैं, क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं अपने क्षेत्र में? ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਮਾੜਾ- ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਝਾੜੂ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਝਾੜੂ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਝਾੜੂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੀ ਚੋਂ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸਹੂਲਤ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ? ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਠੂਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਭੜੋਲੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਬੋਲ ਭਾਈ ਯਾਰ। मैं बोलूँगा। रानिया विधानसभा की बात करें या अपने बड़ौला वाली गांव की बात, कितना विकास हुआ है पिछले 5 साल? विकास तो ठीक हुआ है, ये नहीं कह सकते भी बीजेपी ने नहीं करवाया है। पर विधानसभा के हिसाब से अगर देखें तो इस बार जनता खिलाफ है। इस बार वो बात नहीं है। कांग्रेस वजह क्या है खिलाफ? वजह आप ये देखो भी, मान लो ये जो आम पब्लिक थी ना, सभी किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं और किसानों के मुद्दे बहुत टाइम से लटक रहे हैं। कर्ज माफ़ी का मुद्दा है, उस चीज़ के लिए किसान आज भी तंग है। एमएसपी है और ये मुद्दे, और यहाँ जितने बैठे हैं ये सभी किसान ही हैं। या अगर खुद किसानी नहीं कर रहे तो किसान के साथ रिलेटिव हैं। तो किसानों का अगर मुद्दे हल नहीं होंगे तो भी खिलाफ तो होगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक ये मसले हल नहीं होंगे, अब किसानों को संतुष्ट करो, एमएसपी दो, कर्ज मुक्त। अब बड़े बड़े मतलब इतने करोड़ों रुपए के कर्ज माफ़ कर दिए इंडस्ट्रियलिस्टों के, तो ये किसानों के क्यों नहीं हो सकते? पिछली बार चौधरी साहब निर्दलीय जीते सीगे, इस बार कह रहे कि बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो कैसा मुकाबला? मैं तो कहूँगा भी वो आज़ाद ही लड़ने बेहतर है। बीजेपी का फायदा नहीं मिलेगा इस बार।
वो बात नहीं रहेगी। ठीक है, अभी चलो उनका होल्ड है, लिंक है, यहाँ पे पहले भी थे, पर फिर भी बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की वो बात जो आज से 5 साल पहले थी वो नहीं है। इस बार तो अभय सिंह का भी सिस्टम ठीक है, चौटाला साहब सही कर रहे हैं सिस्टम, उस हिसाब से भी देखें तो इस बार यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ये नहीं होगा अभी आप पिछली बार जैसे, पिछली बार तो सभी पार्टियों ने, हम मैं खुद भी मान लो रणजीत सिंह के साथ था, उनको वोट दिया हमने भी, पर इस बार अब वो बात नहीं होगी। मत नहीं है। मन बात आप ये देखो भी, जब सिस्टम पूरे परिवार मान लो एक समाज का सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, एंटी भी नहीं जा सकते, मानना पड़ता है। अगर हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग भी कहेंगे तो उनकी भी माननी पड़ती है, उस हिसाब से होता है सब कुछ। बाकी ठीक है, चलो रणजीत सिंह को हम ये नहीं कहते भी काम नहीं हुए, काम हुए हैं, करते हैं, आते हैं, यहाँ आए हैं गाँव में, ये नहीं भी आए ही नहीं। बीजेपी से नाराज है। हाँ, बीजेपी से नाराज हैं, ये बात कहनी पड़ेगी, बीजेपी से नाराज हैं इस बार। तो इस बार उसका किसान आंदोलन। हाँ, मेनली तो यही मानो भी, क्योंकि यहाँ तो ये किसान वर्ग ही है यार ज़्यादा, और तो हम ये नहीं कह सकते भी फैसिलिटी नहीं है, कोई लाइट है हमारे यहाँ 24 घंटे या कोई कमी नहीं है। चौधरी साहब ने काम करवाए हैं, वो तो चल रहे हैं, पर अगर मान लो आप ये मान लो भी अगर इतना बढ़िया बीजेपी का होता तो वो हिसार सीट जीतते, वहाँ कैसे हार गए? तो यही तो एक कारण है। अभी आज चाहे कुछ मर्जी मान लो भी, बीजेपी के खिलाफ एक लहर है जो कौन सी टाइम सरकार? सरकार तो अब भाई ये अभी पसंदीदा अपनी अपनी है हर किसी की, पर फिलहाल थोड़ा कांग्रेस का रुझान ज़्यादा है हरियाणा में। हुड्डा का एक है वजूद थोड़ा, तो लोगों को उम्मीद है अभी इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। पर कहीं ये भी लग रहा है भी ठीक है, जैसे चौटाला साहब का सही है सिस्टम, अभय सिंह कर रहे हैं कोशिश, तो किसानों के साथ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। और किसानों का भी उसको थोड़ा है आशीर्वाद भी, ठीक है, उन्होंने उस टाइम इस्तीफा दिया किसानों की लड़ाई में। वो उन्होंने एक बार और भी कही थी बात, उन्होंने सिरसा में अभय सिंह जी ने, कि इस बार रानिया में हम किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे, हाँ। ऐसा कैंडिडेट देंगे कि हैरान रह जाओगे। क्या लगता है कोई परिवार से आएगा? बिल्कुल आना चाहिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। परिवार से आता है तो चुनाव कैसा हो? चुनाव तो ये मानो भी फिर आप विजयी मानो उनको, ये रहेगा हमेशा ही। सिरसा में तो उनका होल्ड रहा है, खास करके यहाँ से तो पूरा ही रहा है यार, तो उस हिसाब से। युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र में? नशे की क्या स्थिति है, हालात कैसे हैं? नशा बहुत है जी, नशा ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। कुछ ਨਸ਼ੇ ਦੀ इसमें कोई ਨਸ਼ੇ ਦੀ control हुआ है पिछले ਕੋਈ 5 ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੁੱਲ ਵਟਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ 100% ਨਹੀਂ 115% ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्या चाहते हैं रानिया के लोग इसमें? बदलाव भी चाहते हैं जी। ऐगती तो चौधरी साहब आएंगे तो मुश्किल है, चौधरी साहब का तो जी। अगर बीजेपी की टिकट से आएंगे तो मुश्किल है, या निर्दलीय आएंगे तो भी मुश्किल? निर्दलीय तो कुछ बना सकते हैं, बीजेपी की टिकट से आएंगे तो मुश्किल है जी। काम गुम हुए हैं पिछले 5 साल में? नहीं, कुछ करवाए हैं, कोई ज़्यादा नहीं हुए जी, वैसे विकास होया कुछ जितने मंत्री की हैसियत से होने चाहिए उतने हुए? उतना नहीं हुआ जी, उतना तो पावर नहीं दिखाई उसने। तो पर हम तो लोकदलीय हैं, चौटाला साहब को वोट। हाँ जी, तो लोकदल की स्थिति बताएं कि अगर किसी और को टिकट दिया जाता तो क्या स्थिति होगी? अगर चौटाला परिवार से कोई आता है तो क्या स्थिति? कर्ण चौटाला आ जाते हैं तो फिर सभी कर्ण बदल जाएंगे। अर्जुन या करण कोई अर्जुन आ जाए, कर्ण आ जाए, परिवार से कोई आ जाए, उसका बेटा आ जाए अभय सिंह का, तो सर जीतेगा? ना 100% जीतेगा ही। आपको भी यही लगता है कि? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी, लगता है? यही लगता जी। हम्म। जे आ जाएगी तो पार्टी यही आ चलो। जाएगी, और नहीं तो फिर कांग्रेस तो पक्की हैगी। कांग्रेस तो पक्की है। हम्म। चौधरी साहब है? चौधरी साहब तो मुश्किल है। मुश्किल है, कहते काम कुम तो बहुत कराए हैं। ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ गठबंधन भी बनोगी। ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। तो ये मेरे साथ थे रानिया विधानसभा के गांव बड़ोला वाली के लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपनी राय रखी, और इनका मानना है कि कुछ कुछ विकास कार्य हुए हैं। जितना हरियाणा सरकार में मंत्री होने के नाते रानिया विधानसभा में विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हुआ है। लेकिन इस बार हालात जो है वो बदले हुए हैं। यहाँ भी वही स्थिति है, किसान आंदोलन माने या कुछ भी माने, किसानों का क्षेत्र माने, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। इनका मानना है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो फिर से वो जीत सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए हालात मुश्किल रहेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि इनेलो से अगर उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ता है तो भी मुकाबला रोचक हो सकता है, और उन्होंने जीत का भी दावा किया है। इसके साथ साथ अगर इस तरह से परिस्थितियां नहीं बनती है, रणजीत सिंह चौटाला जो है वो बीजेपी से टिकट लेकर आते हैं, चौटाला परिवार के अलावा कोई चुनाव लड़ता है, तो लोगों का मानना है कि यहाँ से कांग्रेस जो है वो हैवी रहेगी। आपको क्या लगता है? आप रानिया विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमें जो है नए नए सुझाव दें कि हम किस तरह से आप तक जो है वो लोगों की बात
पहुंचा सके। धन्यवाद।